Translation by Hemang Chaitanya Prabhu, and then question answers. Hare Krishna. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopijana Vallabha Girdhari, Jaya Gopijana Vallabha Girdhari, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Yashodanandana Braja Jana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. जय श्री श्री राधा माधव की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय. अच्छा, Radha Bhav Gaur Prabhu, I was thinking, why not I give 2 classes, half an hour in English, then same half an hour in Hindi. Okay. You want to do that? I don't mind translation. Huh? Or you can maybe switch over and do English, both together. If you feel the flow is Sorry. getting restricted. Come back. You could maybe try to do English, English and Hindi a little bit. You yourself can translate that. Maybe if your flow is feeling, sometimes I understand the flow gets. Yeah, no. So I can speak half an hour in English and then same class half an hour in Hindi. That may be a little, Okay. What will happen, Yeah, there will be some devotees who will get, Okay. Okay, so Hemang Chaitanya Prabhu will translate. Okay. Okay, thank you. Thank you very much. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay, so I'll read the verse in English. Yes. आप पूरा इंग्लिश में पढ़िए, बाद में मैं हिंदी में पूरा इकट्ठा पढ़ लूंगा. Okay. So today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto. हम आज श्रीमद् भागवत. अच्छा, मैं पूरा पढ़ लेता हूँ. हाँ, पूरा पढ़ लीजिए आप इंग्लिश में. Today we are reading from Srimad Bhagavatam, Canto 2, the Cosmic Manifestation, Chapter 5, the Cause of All Causes, verse number 20. So, तो आज हम श्रीमद् भागवतम के स्कंद 2 से 5वां अध्याय और 20वां श्लोक से पढ़ रहे हैं सृष्टि की रचना, जिसमें समस्त कारणों के कारण अध्याय का नाम है. स एष भगवा लिंगये त्रिभिरेतैरधोक्षज स्वलक्षित गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वर. Translation and purport by Srila Prabhupada. O Brahmana Narad, the superseer, the transcendent Lord, is beyond the perception of the material senses of the living entities because of the above mentioned 3 modes of nature. But he is the controller of everyone, including me. Purport by Srila Prabhupada. In the Bhagavad Gita, the Lord has declared very clearly
that the impersonalist who gives more importance to the transcendental rays of the Lord as Brahmajyoti and who concludes that the absolute truth is ultimately impersonal and only manifests a form at a time of necessity is less intelligent than the personalist, however much the impersonalist may be engaged in studying the Vedanta. The fact is that such impersonalists are covered by the above mentioned three modes of material nature. Therefore, they are unable to approach the transcendental personality of the Lord. The Lord is not approachable by everyone because he is curtained by his Yogamaya potency. But one should not wrongly conclude that the Lord was formerly unmanifested and has now manifested himself in the human form. This misconception of the formlessness of the Supreme Personality of Godhead is due to the Yogamaya curtain of the Lord and can be removed only by the Supreme Will as soon as the conditioned soul surrenders unto him. The devotees of the Lord who are transcendental to the above mentioned three modes of material nature can see the all blissful transcendental form of the Lord with their vision of love in the attitude of pure devotional service. हरे बोल, हरे कृष्णा। ओके, तो मैं जरा शेयर करने जा रहा हूँ स्क्रीन को हिंदी में। ओके, सब लोग देख सकते हैं हिंदी में ना? हरे कृष्णा। तो मैं डायरेक्ट अनुवाद और तात्पर्य पढ़ रहा हूँ। हरे कृष्णा। हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा पर ब्रह्म प्रकृति के उपरयुक्त तीन गुणों के कारण जीवों की इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, लेकिन वे मुझ समेत सबों के नियंता हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के जय श्रील प्रभुपाद की जय। भगवद गीता 7वें अध्याय 24वां और 25वां श्लोक में भगवान ने यह स्पष्टतः घोषित किया है कि निर्विशेषवादी जो ब्रह्म ज्योति रूप भगवान के दिव्य गुणों को अधिक महत्व देता है तथा यह निष्कर्ष निकालता है कि परम सत्य वास्तव में निर्विशेष है तथा आवश्यकता पड़ने पर अपना रूप प्रकट करता है, ऐसा निर्विशेषवादी सगुणवादी से कम बुद्धिमान होता है, चाहे वह वेदांत के अध्ययन में कितना ही क्यों न लगा रहे। तथ्य तो यह है कि ऐसा निर्विशेषवादी उपरयुक्त गुणों से आच्छादित रहता है, अतः वह भगवान तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। भगवान प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुगम्य नहीं है क्योंकि वे अपनी योगमाया शक्ति से आवृत रहते हैं, लेकिन इससे यह तर्कपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि भगवान मूलतः अव्यक्त थे और मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान के रूप विहीन होने की यह भ्रांत धारणा भगवान के योग माया के आवरण के कारण है, और जब बुद्धिजी भगवान की शरण में जाता है तो परम इच्छा से ही यह दूर हो सकता है। भगवत भक्त जो उपयुक्त तीन गुणों से परे रहते हैं, भक्ति भाव में अपनी प्रेम दृष्टि से उनके सर्व आनंदमय दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So we are reading this important chapter where Lord Brahma is giving transcendental knowledge to Narad Muni. ये बहुत ही हम महत्वपूर्ण आज अध्याय पढ़ रहे हैं जिसमें कि जो ब्रह्मा जी हैं वो नारद मुनि को
दिव्य ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं। So Narad Muni is son of Lord Brahma and is approaching submissively to inquire. तो नारद मुनि जो है वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और बहुत ही नम्र भाव से वो ब्रह्मा जी को के पास जाते हैं ये दिव्य ज्ञान के प्राप्ति करने के लिए। So Narad Muni glorifies Lord Brahma and says that you are appearing to be the supreme person of this universe. But then sometimes I feel that there's somebody above you also. तो नारद मुनि यहाँ पे बहुत ही नम्र भाव से उनको बोलते हैं कि आप, और उनकी स्तुति करते हैं कि आप मुझे ऐसा लगता है कभी कि आप पूरे तीनों लोक के जो स्वामी हैं, आप सब कुछ हैं, आप ही परम हैं आप। लेकिन कभी कभी फिर ये फील मुझे महसूस होता है कि नहीं, आपके ऊपर भी कोई है। जैसे अगर कोई व्यक्ति घर में पैदा होता है और बाहर कभी नहीं जाता है तो उसको so if somebody is born in a house and doesn't go out, he will think this is the world. तो अगर कोई व्यक्ति अगर घर में बैठा रहे हमेशा और बाहर निकलता नहीं है तो उसको ये अनुभव होगा कि पूरा विश्व यही है, मेरा जो घर है पूरा विश्व यही है। But sometimes he may hear noise from outside and think, oh, there is something outside also. तो लेकिन वो ये कभी जो है ना उसको ये फील होता है मेरे से भी कोई है ना ज्यादा कोई बढ़ के है, ऐसा बाद में जब बाहर निकलने से उसको ऐसा अनुभव होता है फिर। So in the same way, Narad Muni is inquiring who is the cause of all causes. तो इसलिए नारद मुनि है ना उनसे पूछते हैं कि सब कारणों के कारण आखिर कौन है। And Lord Brahma replies that there is Bhagwan Krishna, the Supreme Personality of Godhead, who is hidden and he is cause of all causes. तो ब्रह्मा जी उनको उत्तर देते कि जितने समस्त कारणों के कारण है वो भगवान कृष्ण है। The same thing Narad Brahma ji, he speaks in Brahma Samhita, Ishvara Parama Krishna Sachid Anand Vigraha Anadir Adir Govinda Sarva Karana Karanam. तो यही चीज जो ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आनंद गोविंद सर्व कारण कारणम, तो ये करके उन्होंने जो बताया है ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में भी एक चीज को उन्होंने बताया है। So Krishna is supreme cause of all causes, but he is hidden. We can't see him. तो कृष्ण एक्चुअली सब कारणों के कारण है लेकिन वो छुपे हुए हैं, हम उसको उनको देख नहीं सकते हम लोग। And in this verse, Brahmaji is explaining why we can't see him. तो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी ये बता रहे हैं कि उसमें समझा रहे हैं क्यों नहीं हम भगवान को देख सकते हैं। So that supreme person who can see everybody is hidden. तो वो जो परम भगवान वो कि सब कुछ देख सकते हैं लेकिन वो खुद छुपे हुए हैं। He is called Adoksaja. इसलिए उनका नाम अधोक्षज है। Adoksaja is one who is beyond our senses. अधोक्षज उसको बोलते हैं जो कि हमारी इंद्रियों से परे है। A better word is transcendental. He is transcendental. तो वो जो अच्छा एक शब्द वो है दिव्य, तो वो दिव्य होता है वो। Transcendental means he is beyond the material modes of nature, three modes, Satogun, Rajogun, Tamogun. तो इसका मतलब ये होता है कि जो तीनों गुण से ऊपर जो है वो व्यक्ति होता है जो दिव्यता उसको प्राप्त हुई, इसका जो तीनों गुण से ऊपर उठ जाता है वो। And the soul is also transcendental, being part and parcel of Krishna. तो जितने भी जो जीव हैं वो उनके जो अंश हैं कृष्ण के ही अंश हैं सब। But unfortunately, some of the souls they fall down and they come under the three modes of material nature. लेकिन कभी कभी दुर्भाग्य से जब ये जो आत्मा है जब नीचे आके गिरती है और नीचे जब यहाँ पे जो भौतिक जगत में गिरने के बाद वो तीन जो प्रकृति के गुणों उनके प्रभाव में आ जाती है वो। So Krishna is beyond the three modes
and the conditioned souls are under the three modes. इसलिए जो कृष्णा है वो तीन जो प्रकृति के गुण है उनसे ऊपर है, लेकिन जो बद्ध जीव है वो तीनों प्रकृति के गुणों के अधीन है वो. That's why the conditioned soul cannot see Krishna. इसलिए जो बद्ध जीव हो कभी भी कृष्ण को नहीं देख सकते. And if they hear about Krishna, they think he is like us. इसलिए कभी कभी जब वो कृष्ण के बारे में सुन भी लेते हैं तो उनको यही महसूस करते, अनुभव करते कि कृष्ण हमारे जैसे ही तो है. But even though Krishna performs pastimes and takes birth like human, we should know he is transcendental. Janma karma chame divyam. तो जबकि हम जानते हैं कि वो है ना कृष्ण जो कभी कभी जब अपने मनुष्य रूप में हमारे बीच में जन्म लेते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि जन्म कर्म चैत्य मतलब मेरे जो जन्म है वो सब दिव्य है. And this is very nicely shown in the life of Shukadeva Goswami. और इसको जो सुखदेव गोस्वामी के जीवन में बहुत अच्छे ढंग से इसको समझाया गया है. Shukadeva Goswami is son of Vyasdev and he remained in the womb of his mother for 16 years. सुखदेव गोस्वामी जो है ना जो व्यासदेव जी के पुत्र हैं, लेकिन वो जो अपनी माता की जो गर्भ में 16 साल रहे वो. Generally, a child comes out of the womb in 9 months. But Shukdev said, I don't want to come out because outside there is Maya. तो जो देखा जाए तो 9 महीने में एक्चुअली बच्चा बाहर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो जो सुखदेव गोस्वामी को ऐसा लगता है नहीं, अगर हम बाहर निकलेंगे 9 महीने के बाद तो माया पकड़ लेगी, इसलिए वो अपने गर्भ के अंदर ही 16 साल रहे. So finally at the age of 16 when he came out, as soon as he came out, he immediately left his home. उसके बाद 16 साल के बाद जैसे ही वो अपने माता के गर्भ से बाहर आया और बाहर निकलते से वो उन्हें अपने घर का त्याग कर दिया. He didn't even wait to see the face of his mother and father. उसने कभी इंतजार नहीं किया अपने माता और पिता का जो चेहरा देखने के लिए भी इंतजार नहीं किया उसने. He is born liberated soul. तो वो जो मुक्त आत्मा जैसे ही वो पैदा हुए थे, he started walking towards the forest and his father Vyasdev started following him. तो जैसे ही उनका बाहर निकले हम घर में से सीधा जंगल की तरफ चलने लगे और उसके पीछे पीछे उनके पिताजी आ रहे थे. So Srila Vyasdev following his son started shouting, wait, wait, my dear son, wait, wait. But Shukdev never replied. तो व्यासदेव जी उनके पीछे पीछे जाने लगे, उनको बोले इंतजार करो मेरे पुत्र, इंतजार करिए. लेकिन उन्होंने इसकी कोई परवाह नहीं की, वो सीधा सीधा चलते ही गए, सीधा. Shukdev never stopped and told father, please don't follow me, I will not come. No, he didn't even reply. He just left as if completely neutral. तो सुखदेव गोस्वामी ने कभी ऐसा पीछे रुक के कभी पीछे मुड़ के नहीं बोला कि नहीं आप मेरे को मत आइए मेरे पीछे, मैं नहीं आऊंगा. तो उन्होंने बस उनको दिमाग में आया कि मेरे को नहीं रहना, तो सीधा वो निकल गए और पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा पिता की रोया, पिता से कुछ बात नहीं किया उसने. In this way, Shukdev Goswami went near a river and then followed the path towards the forest. तो ऐसा इस तरह से जो सुखदेव गोस्वामी जो है कोई कम उम्र में ही और वो पूरा जंगल की तरफ बढ़ गए बगैर किसी सांसारिक चीजों की परवाह किए. No, he went near a river. अच्छा, वो नदी के समीप चले गए वो. और वहीं and from there he went to the forest. और फिर वहां से नदी से फिर वो जंगल की तरफ चले गए वो. So Vyasdev also following Shukdev Goswami came near the river. तो जो व्यासदेव है वो भी है ना उनके पीछे पीछे आ रहे थे क्योंकि सुखदेव गोस्वामी, इसलिए वो भी पहले नदी की तरफ गए. So in the river there were some young girls taking bath without clothes. तो जो नदी में लेकिन जो है ना जो युवतियां हैं वो है ना बगैर कपड़ा पहने हुए वहां पे नहा रही थी नदी में. So as soon as they saw Vyasdev, they became shy and started covering their body. और जैसे व्यासदेव जी को देखा तो उनको शर्म महसूस हुई और तुरंत ही अपने शरीर को कपड़ों से ढक लिया. So Vyasdev was surprised and he spoke to the girls. तो व्यासदेव बहुत ज्यादा हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने लड़कियों से पूछा. So he asked the girls that what kind of behavior is this? Just now my
naked 16-year-old young boy passed from here and you didn't cover your clothes, and now I am a 90-year-old like your grandfather and you are feeling shy and covering your body? तो इसलिए जो व्यासदेव जी ने वो लड़के युवतियों के पास जाके पूछा उनको कि ये बहुत ज्यादा बड़े आश्चर्य की बात मुझे लगी है कि आप है ना, जब मेरा जो पुत्र है वो जवान है एकदम 16 साल का और पूरे तन पे कोई कपड़ा नहीं था, और वहाँ यहाँ से जब निकला तो आपके ऊपर कोई उसका असर नहीं हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वैसे की वैसे नहाती रही। लेकिन मैं तो 90 साल का बुजुर्ग व्यक्ति हूँ और देखा मैं आपके दादा के समान हूँ, लेकिन फिर भी आपने मेरे को देख के अपने शरीर को कवर कर ढक दिया, ऐसा क्यों किया आपने? So then the girls replied that your son is liberated, he doesn't know the difference between male and female, so we don't have to cover our body. तो लड़कियों ने उसका जो युवतियों ने उसका उत्तर दिया कि जो आपका जो पुत्र है वो एकदम देव अवस्था प्राप्त कर चुका है, तो इसलिए उसको लड़की और लड़के में कोई जो है पुरुष और स्त्री में कोई अंतर उसको मालूम नहीं पड़ता। इसके लिए जब वो जा रहा था तो उनकी आंखों से हमें लगा कि इसको कोई अंतर नहीं है, इसलिए हमें भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, हमें भी कोई असर नहीं पड़ा उसके आने से। So we see Sukadeva Goswami is such a Atmaram, self-satisfied, liberated soul that he doesn't get attracted to the young, beautiful, naked bodies of girls. जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कि उनकी देवावस्था का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो इतने कम उम्र में ही कितने उन्होंने देवावस्था प्राप्त कर ली कि जब वो जो युवती है निर्वस्त्र थी, उनको देखने के बाद में उनके ऊपर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। So a boy and girl getting attracted to each other is the highest attraction in material world. तो आपस में जो लड़का और लड़की जब आकर्षित होते हैं तो ये सबसे ऊंचा जो है आकर्षण माना जाता है इस भौतिक जगत में। And Sukadeva Goswami is beyond that. लेकिन जो सुखदेव गोस्वामी इससे ऊपर उठ चुके थे। So what to speak about his attraction towards fruits or eatables or mobile or car or house? He has no such material attraction. तो फिर उस चीजों का क्या कहना है, जैसे कि जो भौतिक जगत की जो सर्वाकर्षक चीजें हैं है ना, और जो जितने भी खाने पीने के जो चीजें हैं, तो उनसे जो है उनका कुछ भी कितना फिर जब आकर्षण होगा, जब उससे नहीं उससे क्या आकर्षण होगा फिर उनका। So this Sukadeva Goswami one day was in the forest and he heard from two brahmacharis one shloka of Srimad Bhagavatam. इससे जब जंगल में जब जा रहे सुखदेव गोस्वामी तो उन्होंने वहाँ पे एक श्लोक सुना जो श्रीमद् भागवतम का कुछ विद्यार्थियों से, वहाँ पे 2 विद्यार्थी थे जो। So the shloka was talking about Krishna's merciful nature. तो श्लोक है ना वो कृष्णा के जो कृपापूर्ण जो स्वभाव है उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। That how Krishna was so merciful that he delivered Putana who came to kill him, but he still liberated her. तो कृष्ण कितना कृपालु है कि जो पुतना जो उनको मारने के लिए आई थी, लेकिन फिर भी कृष्ण ने उनको एक्चुअली मार के उनको फिर उनको खुद को है ना गोलोक वृंदावन में एक अच्छा स्थान दिया उनको। So Sukadeva Goswami got attracted to the shloka and he told the brahmacharis, I want to know more. Do you have more shlokas? इसलिए जो वो हैरान हो गया है और उसने पूछा सुखदेव गोस्वामी ने कि आप ये जो श्लोक बोले हैं तो क्या और आप ज्यादा श्लोक बोल सकते हैं? इससे मुझे बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा आपके श्लोक बोले, तो और भी है तो और भी सुनाइए आप। So that Sukadeva Goswami who doesn't get attracted to young naked girls, if he gets attracted to Krishna, we should understand Krishna is not material, he is transcendental. इसलिए जो कुछ जब हम जो सांसारिक जो चीजों उससे आकर्षित नहीं होते, लेकिन जो सुखदेव गोस्वामी जो है इतना उच्च कोटि का आकर्षण छोड़ने मतलब से आकर्षित नहीं होके, तो आप जो बाकी जो साधारण जो चीजों से कैसे वो आकर्षित हो सकते हैं फिर, जिससे हम लोग आकर्षित होते हैं। So that shows Krishna is not a material hero or ordinary human being. तो इससे यह साबित होता है कि जो कृष्णा है इसका मतलब वो भौतिक नहीं है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है कृष्णा। He is transcendental beyond the 3 mode of goodness, passion and ignorance. तो ये जो 3 गुण है, सत्व जो उत्तम गुण, ये उससे ऊपर है कृष्णा, दिव्य है उनकी अवस्था। And the conditioned soul
is below the three modes. The senses of the conditioned souls are below, under the three modes. और जितने भी जो बद्ध जीव है वो है ना तीन गुणों के प्रभाव में रहते हैं, हमेशा तीन गुणों के अंतर्गत आते हैं। So with our conditioned senses, we can't perceive Krishna. इसलिए हम लोग इससे मालूम पड़ता है हमारी जो ये बद्धता के कारण हम कृष्ण की तरफ जा नहीं सकते हम। So this material nature is the curtain between us and Krishna. इसलिए जो भौतिक जो प्रकृति है, वो जो भौतिक स्वभाव है, ये हमारे और कृष्ण के बीच में एक पर्दे का काम करता है। Krishna is everywhere, even very near to us, but we are covered. कृष्ण सब जगह है, एकदम हमारे करीब है। Just like if you are in a room and the light is on and you close your eyes, even though the room there is no darkness, but still you will see darkness. इसलिए जो कभी हम रूम में हैं अगर, तो रूम में अगर हमें प्रकाश नहीं आ रहा है तो उसमें जब भी अगर उसमें हमें फिर भी अंधेरा अंधेरा दिखता है, कभी कभी पूरा अंधेरा दिखता है। हम जैसे उठते हैं जागते हैं हमारी आँख खुलती है तो No. You are in a room and the light is on, there is light, there is no darkness, but if you close your eyes, you will be in darkness. तो इसलिए जब आप किसी रूम में बैठे हो उसमें पूरा प्रकाश ही प्रकाश है, लेकिन अगर आपकी आंख बंद रहेगी तो आपको फिर भी अंधेरा दिखे, जबकि पूरे रूम में उजाला है फिर भी आपको अंधेरा दिखा अगर आपकी आंख बंद है तो। So when your eye is closed and you tell your friend, hey, please turn on the light. इसलिए अगर आप उस टाइम में आंखें बंद कर अपने मित्र को कहेंगे आप जो लाइट जलाइए, तो your friend will say, अरे light is on, just open your eyes. तो आपके मित्र बोलेंगे अरे भाई लाइट तो चालू है, पूरे रूम में जल रही लाइट, आप कृपया करके अपनी आंखें खोलिए। In the same way, now we are covered and Krishna is already in our room. We just have to uncover ourselves. इसलिए जो है ना कृष्णा भी हमारे लिए जो अभी पूरा ढका हुआ है, पूरा छुपा हुआ है, सिर्फ हमको क्या है ना अपनी आंखें खोल के दिव्य ज्ञान के चक्षुओं से खोल के उनको तब हमें देखने का प्रयास करना है हमें। And that uncovering of ourselves is called Cheto Darpana Marjanam. और ये जो अपने आप को जो ढकी चीज से निकालना है, मतलब जो चेतो दर्पण मार्जनम वो करना है हमें। Or Cheto Darpana and the Cheto Darpana Marjanam, the cleaning of the heart happens by chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। तो इसलिए जो लेकिन जो हृदय से जो ढका हुआ चीज है उसको निकालने, जो चेतो दर्पण मार्जनम, वो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ही हम उसको निकाल सकते हैं, स्वच्छ कर सकते हैं उसको। So those who are within the three modes, they don't understand Krishna. तो इसलिए जो भी तीन जो प्रकृति के गुणों के प्रभाव में जो लोग हैं वो कभी भी कृष्ण को नहीं समझ सकते हो। It's only possible by devotional service. ये सिर्फ है ना भक्ति के द्वारा ही संभव है। Otherwise, Krishna is covered by his own Brahma Jyoti. अदरवाइज जो कृष्ण जो है ना देखा जाए तो अपने खुद की ब्रह्म ज्योति से ढका रहता है। This Brahma Jyoti is Nirakar, Nirgun, all pervading everywhere. ये जो ब्रह्म ज्योति निर्गुण और निराकार है और सब जगह इसकी उपस्थिति होती है, सब जगह मौजूद रहती है ये। So the impersonalists and Mayavadis, they think this Brahma Jyoti is absolute truth. तो इसलिए लेकिन जब मायावादी ये सोचते हैं कि जो ब्रह्म ज्योति जो है यही एक्चुअली परम सत्य है। And the ultimate truth is this Nirakar, and our goal of life is to merge in this formless rays of Jyoti. इसलिए जो हमारा जो अल्टीमेट जो उद्देश्य होता है, ऐसा वो सोचते हैं कि ये जो ब्रह्म ज्योति में जो निराकार है उसमें अपने आप को लीन करना, ये हमारा जीवन का लक्ष्य, ऐसा सोचते हैं जो मायावादी हैं, जो निराकारवादी हैं। But Sri Chaitanya Mahaprabhu has explained that beyond the rays is the supreme beautiful form of Shyam Sundar, and our goal of life is to offer love and service to him. चैतन्य महाप्रभु ने समझाया, बताया कि इसके जो परे जो है ब्रह्म ज्योति के वो है ना साकार जो सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का, और उसको हमको एक्चुअली
उसकी तरफ हमें ध्यान है, उसकी तरफ अपने आप आकर्षित करना है हमें, उनके जो सच्चिदानंद स्वरूप है ब्रह्म का जो। When Sri Chaitanya Mahaprabhu visited Varanasi, he would chant and dance on the streets of Varanasi, and hundreds and thousands and lakhs of people would follow him chanting and dancing. इसलिए जब चैत्र महाप्रभु जब नृत्य करते कीर्तन करते थे, उससे कई सैकड़ों लाखों लोग, हजारों लाखों लोग उनके पीछे पीछे चल जाते थे और वो भी नृत्य करते थे। And in Varanasi there is a temple of Lord Shiva, Vishwanath, where Chaitanya Mahaprabhu every day would early morning go to attend Mangalarti. तो वहाँ वाराणसी में जो शिव जी का एक मंदिर है, जहाँ पे चैत्र महाप्रभु डेली सवेरे मंगल आरती में उपस्थित होते थे वहाँ पे। So every day hundreds of people would come for Mangalarti to take darshan of Lord Shiva in Vishwanath ji's temple. इसलिए जो विश्वनाथ के जो मंदिर में कई लोग आते थे वहाँ शिव जी का दर्शन लेने के लिए। And thousands of people will come in the same temple of Lord Shiva to take darshan of Chaitanya Mahaprabhu. और इसलिए कई लोग भी फिर ऐसे जो शिवाजी के ये सेम मंदिर में कई लोग आते थे, वो सिर्फ चैत्र महाप्रभु का दर्शन लेने के लिए आते थे वो। So Chaitanya Mahaprabhu became very popular sannyasi in Varanasi. तो इसलिए जो चैत्र महाप्रभु जो वाराणसी में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध एक सन्यासी बन गए वो। And Varanasi at that time was full of Mayavadi sannyasis, and the leader was Prakashanand Saraswati. उस टाइम में लेकिन जो वाराणसी थे वो पूरा मायावादियों की नगरी थी, बहुत सारे मायावादी थे, और उनका जो मेन जो नेता था, मुख्य जो नेता था, वो है प्रकाशानंद सरस्वती, जो बहुत बड़ा मायावादी था। And this Mayavadi sannyasis would criticize Chaitanya Mahaprabhu that he is very emotional person. ये जो है ना जितने भी जो मायावादी सन्यासी थे वो है ना हमेशा चैत्र महाप्रभु का है ना उसका आलोचना करते थे और बोलते थे कि ये है ना जो इसका जो दिमाग ठीक नहीं है, ऐसा कर रहा है तसीरा काम। He is just chanting and dancing on the streets instead of reading Vedanta with the other sannyasis. तो ये है ना बस सड़क पे जाता है, वहाँ पे नृत्य करता रहता है और जपा हरे कृष्ण करता रहता है, बोलता रहता है, लेकिन वो वेदांत जो दर्शन है उसका कभी ध्यान नहीं करता वो। So one day one Brahmana invited all the sannyasis to his home for lunch, including Chaitanya Mahaprabhu. इसलिए एक दिन के एक ब्राह्मण ने है ना सभी लोगों को अपने घर में, सब सन्यासी को बोला, उसमें जो चैत्र महाप्रभु थे उनको भी उसमें बुलाया गया अपने घर पे उन्होंने। So there Chaitanya Mahaprabhu came among the assembly of sannyasis. He paid his obeisances, he washed his feet, and he sat at the same place where he washed his feet. इसलिए लेकिन जब वो गए वहां पे तो जितने भी जो सन्यासी जहाँ बैठे थे सभा में, वो सबको प्रणाम किया उन्होंने, और इसके बाद वो एकदम बहुत ही जो असाधारण जो स्थिति थी, जहाँ बहुत छोटी सी जगह पे वहां जाके बैठ गए, छोटे जगह पे बैठ गए। So then, because seeing Chaitanya Mahaprabhu's beautiful form, effulgence and humility, the leader of Mayavadi sannyasis, Prakashana Saraswati, got attracted to him. तो जैसे जो चैत्र महाप्रभु को प्रकाशानंद सरस्वती ने उनका जब देखा और उनकी खूबसूरती देखी तो उससे काफी आकर्षित हुए और वो उनकी तरफ चले गए वो। And then Prakashana Saraswati extended his hand and told Chaitanya Mahaprabhu, "You come and sit beside me." तो फिर उन्होंने जो प्रकाशन सरस्वती ने उनको है जाके उनको बोला, कृपया करके आप मेरे पास में आके बैठिए। Then he told Chaitanya Mahaprabhu that you are a sannyasi from Bharati Sampradaya, which belongs to the line of Shankaracharya. So why don't you associate with us and read Vedanta? तो इसलिए उन्होंने चैत्र महाप्रभु से बोला कि आपके जो जिसने आपको दीक्षा दी है भारती जो है वो भी एक्चुअली हमारे जो सन्यासी हमारे जो संप्रदाय है वो भारतीय संप्रदाय उसी से ही है वो, तो आप क्यों नहीं फिर हमारे साथ बैठ के ना ये वेदांतों का दर्शन करते हैं, वेदांतों का अध्ययन करते हैं आप। Why do you associate with street people and whole day chant and dance like a emotional person? तो हम ये जो सड़क पे जो जितने भी जो पुराने जो लोग हैं इनके साथ में जो क्यों हम उनके साथ जाके संग करें, जो कि एकदम पूरा कोई मतलब उनका कोई वो नहीं है, स्तर नहीं है, कुछ स्तर नहीं है उनका। So Chaitanya Mahaprabhu said that I don't read Vedanta Sutra because my spiritual master told me not to.
क्यों नहीं मैं वेदांत पढ़ता हूँ, वेदांत सूत्र? क्योंकि मेरे जो आध्यात्मिक गुरु ने मुझे बोला कि आप नहीं पढ़ने का वेदांत सूत्र। Chaitanya Mahaprabhu's spiritual master is Srila Ishwar Puri. चैतन्य महाप्रभु के जो आध्यात्मिक गुरु है वो ईश्वरपुरी है। So Chaitanya Mahaprabhu told that my Guru Maharaj Ishwar Puri told me that you are a fool and you will not understand Vedanta. तो मेरे जो गुरु हैं ईश्वरपुरी महाराज, उन्होंने मुझे बोला कि मैं नंबर 1 मूर्ख हूँ और अगर मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा वेदांत सूत्र तो मुझे समझ में नहीं आएगा। So that's why you don't read Vedanta, you just whole day chant the holy name of Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, हरे। तो इसलिए फिर उन्होंने मुझे बोला कि क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएंगे वेदांत सूत्र वगैरह, इसलिए उनका अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप केवल है ना हरे कृष्ण महामंत्र जाप करिए और करते रहिए दिन भर, और वही आप नित्य कीर्तन करिए उसका। So on the order of my spiritual master, every day I would chant the holy name of Krishna. मैं अपने जो आध्यात्मिक गुरु के आदेश के अनुसार मैं डेली इसके लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जपा करता रहता हूँ मैं। So as I would chant, tears would come from my eyes, my hairs would stand, my body would tremble. Sometimes I will laugh, sometimes I will cry, sometimes I will dance like a madman without considering who is around me. इसलिए कभी कभी मेरे को जब मैं उसमें आ जाता हूँ, भावावेश में आ जाता हूँ, तो मैं है ना एकदम आंखों में आंसू आ जाते हैं, मैं नृत्य करने लगता हूँ, हंसने लगता हूँ कभी कभी जोर जोर से। तो ये पूरे जो भावावेश में आने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है, बहुत ज़्यादा अवसर मिल जाता है मुझे। So when I am on the street and walking, suddenly I will cry, suddenly I will laugh, I will dance, I will fall unconscious just by chanting the Hare Krishna Mahamantra. इसलिए जब मैं चैंटिंग करने मात्र से ही मैं ना सड़क पे जाके नृत्य करता हूँ, मेरे आंखों में अश्रु आने लगते हैं, पूरे मेरे शरीर में कंपन होने लगता है। So then, seeing that I am developing symptoms of madness, I rushed back to my Guru Maharaj and asked him, what kind of mantra you have given me? इसलिए जब मुझे ये लगा कि मैं ना एकदम जैसे पागल जैसा हो जाता हूँ ये हरे कृष्ण मंत्र जब जाप करके, तो मैं ना फिर तुरंत गुरु के पास गया कि आपने किस टाइप का मुझे मंत्र दे दिया है। That by chanting this mantra I am becoming mad and dancing on the streets. तो मैं ये जपा करने मात्र से मैं है ना नृत्य करने लगता हूँ, ये सड़कों पे जाके मैं नृत्य करना आरंभ कर देता हूँ। Then Srila Ishwar Puri laughed and he said, Shabash, very good. तो ईश्वर परी तब बहुत ही प्रसन्नचित्त हुए और बोले बहुत अच्छा, शाबाश। Ishwar Puri said, this is the success of the mantra to become mad in Krishna Prem, love of Krishna. तो ये जो मंत्र की सफलता है कि हम पूरा कृष्ण प्रेम में डूब जाएं, यही मंत्र की सफलता है। So this is very good. Now you go and tell others to chant Hare Krishna Mahamantra. तो इसलिए ये बहुत अच्छा है और आप जाइए और अपने सबको बताइए हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने के लिए। And that is why I go everywhere and chant and tell others to chant Hare Krishna Mahamantra. तो इसलिए मैं हर जगह जाता हूँ, जहाँ पे भी जाता हूँ वहाँ पे सबको ये बोलता हूँ सिर्फ कृपा करके सिर्फ जपा करिए हरे कृष्ण महामंत्र का। So I don't on my own cry and laugh and dance. It just happens because of the holy name. तो मैंने खुद अपने आप से मैं ये कोई नृत्य नहीं करता हूँ, रोना आरंभ कर देता हूँ। ये सब जो मंत्र का प्रभाव आने के कारण ही मुझे रोना आ जाता है कभी, या मैं नृत्य करता हूँ कभी हंसना आ जाता है। And my spiritual master taught me one more shloka. मेरे आध्यात्मिक गुरु ने एक और श्लोक है वो बताया है। He taught me Hare Nam Eva Kevalam Kalau Nasteva Gatir Anyatha. था तो उन्होंने जो हरे नाम ही केवल कलो नास्ते गति न ये सब यही जो है, इसके कारण ही हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने में मुझे जो आनंद आता है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। So my spiritual master told me that in Kali Yuga, the only way to get liberation is Hare Nam, the holy name of Hari, the holy name of Hari, the holy name of Hari. इसलिए मेरे जो आध्यात्मिक गुरु ने मुझे यही पता है कि जो कलयुग में है, अगर हमें अपनी गति चाहते हैं, अपना जीवन सफल करना चाहते, सिर्फ हरि का नाम है ना, वो भगवान का नाम सिर्फ आप जपा करिए बस। And Nasteva Gatir Anyatha, there is no other way. There is no other way. There is no other way. दूसरा कोई रास्ता नहीं है
नहीं है दूसरा कोई रास्ता। So I just chant Hare Krishna Maha Mantra instead of reading Vedanta. इसलिए मैं सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र बस जपा करता हूँ वेदांत पढ़ने के बजाय। And Chaitanya Mahaprabhu also explained that the translation of Shankaracharya is incorrect. इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने भी ये भी बताया कि जो अनुवाद किया गया है जो शंकराचार्य के श्लोक का वो गलत है। He has misinterpreted the Vedanta Sutra. और जिसने भी किया उसने है ना जो वेदांत सूत्र को है ना उसकी गलत जो व्याख्या की है उन्होंने। So the actual meaning of Vedanta Sutra is that Krishna has a very beautiful transcendental form and we are servants of Krishna, and when we serve him we can realize that beautiful form. तो इसका मतलब ये है कि जो कृष्णा बहुत ही ज्यादा खूब आकर्षित सर्व आकर्षित बहुत ही खूबसूरत उनका रूप है, और जब हम है ना ये उनका जो भगवान का नाम लेने से फिर हम उनके जो रूप है उनको हम जो साक्षात्कार कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, उसको अनुभव कर सकते हैं हम जब आपके द्वारा। So Krishna has very nice beautiful lotus petal like eyes. कृष्णा की बहुत ही कमल जैसी उनकी नयन है। And he has very thick black curly hair. और उनके जो बाल है बहुत घने घने और घुंघराले काले बाल है उनके। And he has bow like eyebrows. और उसकी जो ब्रो जो है जितनी वो जो बहुत ही खूबसूरत है उनकी जो। And he has mirror like cheeks. और उसके जो गाल है वो है ना आईने की तरह है वो चिकने। And he has a shapely nice nose. और इनकी जो नाक है वो बहुत ही सुंदर आकृति के सुंदर रूप है उसका। And he has reddish lips and pearl like white teeth. तो इनके जो होठ है वो एकदम लाल है और उनके जो मोतियों जैसे चमकते हुए सफेद दांत है। And he has a broad chest and thin waist. और इनके जो कंधे हैं उनका जो सीना है जो छाती है बहुत चौड़ा है और पतली सी कमर है उनकी। And he has lotus navel and lotus palms and lotus feet, soles. और उसके जो कमल उसके चरण उनके कमल से चरण कमल इसलिए उनको बोला जाता है, उनसे तुलना की गई कमल से। And he wears a yellow dhoti and a peacock feather and a Vaijayanti garland. और वो है ना जो पीले कलर के वस्त्र पहनते धोती पहनते हैं और सिर पे मुकुट धारण करते हैं वो। Morpank. सिर पे मोर पंख धारण करते हैं वो। And he wears a Vaijayanti garland. और जो है ना जो वैजयंती माला पहनते अपने गले में वो। And Kaustubh mani. और कौस्तुभ मणि भी है And जो पहनते हो। so beautiful, Bhuvana Sundar, the beauty of the universe. तो इसलिए जो पूरे जो विश्व का ऐसे जो है उसका सबसे बड़ा जो सुंदरता वो दिखती है उनमें, ये सबसे सुंदर यही ऐसा लगता है उसमें। So all the ladies of Vrindavan and all the ladies of the universe get attracted to beautiful Krishna. तो जितनी भी जो वृंदावन की जो भी स्त्रियां थी इसलिए जो इतना सर्व आकर्षित कृष्णा के इतना खूबसूरत कृष्णा की तरफ इसलिए आकर्षित होती है वो। Once Krishna was walking in the palace of Dwaraka. तो एक दिन है ना द्वारका के महल में जब चल रहे थे कृष्ण जी। So in one of the pillar on a big diamond, Krishna saw his own reflection. इसलिए वहां पे एक बहुत बड़ा जो हीरा था वो हीरे के अंदर अपना उन्होंने जो परावर्तित रूप देखा उन्होंने अपना। Just like we see our own reflection in mirror, Krishna saw himself. तो इसलिए जैसे कि हम अपने जो चेहरे को देखना हम आईने के पास जाके अपने चेहरों को देखते हैं, तो वैसे ही जो कृष्ण भी उसमें जो हीरा है हीरे में अपने चेहरे को देखा उसने। So when Krishna saw his own reflection, he stopped walking and he said, "Oh, who is this beautiful boy?" तो जैसे ही लेकिन उन्होंने देखा वहां पे इस पूछा उसको फार्म को, तो वो एकदम वहीं पे रुक गए और आश्चर्यचकित हो गए, अचंभित, अरे इतना खूबसूरत लड़का कौन है ये। So Krishna gets attracted to his own beauty. तो इस तरह से कृष्ण जो है ना अपनी खुद की सुंदरता की तरफ आकर्षित हो गए वो। So devotees can perceive this beauty through devotional service. तो इसलिए उनकी जो भक्त लोग हैं उनकी जो ये जो खूबसूरती है कृष्ण की उसको है ना जरूर उसको समझ सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं
भक्ति के द्वारा। As we progress in devotional service, we gradually realize Naam, Roop, Gun, Leela, the sweet holy name, the beautiful form, the wonderful qualities and wonderful pastimes. इसलिए हम भी जब हमारे हृदय शुद्ध हो जाते हैं, उसके जो रूप, नाम, गुण, लीला है, ये सब और उनके जो इतना खूबसूरत जो रूप है, वो सब हम बहुत अच्छे ढंग से उसको देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं उसको। So by chanting without offenses attentively the holy name of Krishna, we can realize Krishna's beautiful form. तो इसलिए जब हम निरपराध रूप से अगर हमारे कृष्ण मंत्र जाप करते हैं माला के ऊपर, तो हम उस टाइम में कृष्ण जरूर हमें अनुभव कराते हैं कि वो है हमारे साथ। This human form of life is so nice that by just very little hard work, little effort, you can see Krishna face to face. इसलिए ये भौतिक जगत कितना आश्चर्य करके हम थोड़ा सा सिर्फ सेवा करने में, थोड़ी मेहनत करने मात्र से हम है ना कृष्ण को आमने सामने हम देख सकते हैं। So we should use this human form of life to serve Krishna. इसलिए हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है, ये हमें कृष्ण की सेवा को मिला, हम उसी कृष्ण की सेवा में लीन रहना चाहिए हमेशा। Every day very carefully we chant and hear Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, राम राम हरे हरे। तो हम डेली देखते हैं, तो हम सवेरे उठते हैं, फिर हरे कृष्ण महामंत्र हम जाप करते हैं। So when we chant and hear, the holy name comes out of our mouth, goes into the ear, and from the ear the holy name goes into the heart, and we realize Krishna's form in our heart. तो इसलिए हम हमारे मुख से ना वो कानों की तरफ भगवान का पवित्र हो जाता है, फिर हमारे कानों से वो हृदय की तरफ जाता है, और फिर हम अगर निरपराध रूप से जब हम करते हैं, शुद्ध नाम लेते हैं, तो हमें फिर भगवान का उपस्थिति का अंदाजा लगता है हमें। And we realize that I am servant of Krishna. और इस तरह से हम महसूस कर सकते हैं कि मैं सिर्फ है ना छोटा से एक मामूली सा वो हूँ, और मेरा कोई ज़्यादा कुछ वो नहीं है, इतना ज़्यादा महत्व नहीं है, ऐसा हम उसको अनुभव कर सकते हैं। No, we realize I am servant of Krishna. हाँ, मैं ना एक्चुअली कृष्ण का सेवक हूँ, मैं ये ना अनुभव करता हूँ, कर सकता हूँ मैं। This is called self-realization. और इसी को हम आत्मा साक्षात्कार बोलते हैं। And that's only possible when holy name comes in our heart. और ये तभी संभव है जब हम पवित्र भगवान का पवित्र नाम हमारे हृदय में आता है। And the only way holy name can come in our heart is through the whole of the ears. और ये सिर्फ हमारे जो एक ही इसका रास्ता है कि हमारे हृदय में आने का, वो है कानों के द्वारा, हमारे कर्णों के द्वारा वो आता है। So that's why when we chant, we should hear the holy name attentively. इसलिए जब जपा करते हैं तो उस टाइम में बहुत ही ध्यानपूर्वक हमें सुनना, श्रवण करना चाहिए उसका पवित्र नाम। Every day nice 16 rounds without offenses. इसलिए हमें बहुत ही अच्छे ढंग से निरपराध रूप से 16 माला का जाप करना चाहिए दिन प्रतिदिन। This is very important item of devotional service. ये जो हमारे भक्ति का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो ये वस्तु है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे लिए हरे कृष्ण मंत्र का जाप। To every day get up early morning, do Mangal Aarti, chanting, hearing Guru Puja, Tulsi Aarti, whole morning program nicely. इसलिए हम सवेरे उठ के हम जो जितना पूरा प्रोग्राम है, वो मंगल आरती जो है, तुलसी आरती है, जपा है, ये सब हमें भागवतम का श्रवण, ये सब हमें बहुत ही कड़ाई से इसका पालन करना चाहिए। So then this human form of life will be successful. तभी हमारा जो मनुष्य का जो हमें जन्म मिला है, उसमें सफलता प्राप्त होगी। And we'll go back to Godhead. और इस तरह से हम भगवत धाम को जा सकते हैं हम। Okay, thank you very much. तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई if there are any questions or comments, you may please ask. तो किसी को प्रश्न उत्तर कृपया करके पूछिए। दीपक प्रभु जी, अनम्यूट योरसेल्फ। दीपक प्रभु जी, अनम्यूट योरसेल्फ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। Prabhu, it was a really wonderful class and it was a wonderful nectar you had shared with us. Thank you so much. प्रभु जी, मेरा प्रश्न ऐसा है कि जैसे आपने बताया कि जब चैतन्य महाप्रभु जी जपा करते थे या हरिनाम संकीर्तन करते थे तो उनको रोमांच होता था, उनके बाल खड़े हो जाते थे, अश्रुधारा निकलते थे, उनका गला रुंध जाता था।
पर हम जब ये जपा करने की कोशिश करते हैं तो हमें इन सब बातों का अनुभव नहीं हो पाता है। डेफिनेटली मैं अपने आप को चैतन्य महाप्रभु से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, पर वो एक्सटेसी जो होती है उसका हम अनुभव नहीं कर पाते कि हमारे रोंटे खड़े हो रहे हैं या गला गूंज रहा है या वो हमें अनुभव नहीं हो पाता। उसका क्या रीजन है? हरे कृष्णा। हाँ तो he is asking question is asking by Deepak Mehra Prabhu that when Chaitanya Mahaprabhu he was chanting and that time he was feeling ecstasy and then his throat was choking up and and then shivering, body was shivering and then so many symptoms of ecstasy he was showing. It was means manifesting. But when we are chanting that time nothing like that happening. So what is the reason for this no ecstasy? What is the reason of no ecstasies? Okay, so this part I will answer in Hindi because he has asked in Hindi. You translate in English. Yes. तो रूपा गोस्वामी बताते हैं कि जो कोई जॉन्डिस का पेशेंट होता है वो जब शुगर केन जूस लेता है तो उसको कड़वा लगता है, हालांकि शुगर केन जूस मीठा होता है. Jiv Goswami, he is explaining that when a jaundice patient is there and when he drinks sugar cane juice, so he says it is very bitter taste. Actually, it is not bitter; it's very sweet. Everybody knows that sugar cane juice is sweet, but he feels bitter. उनका जीभ अफेक्ट हो जाता है इसलिए उनको कड़वा लगता है, लेकिन दवाई वही है कि शुगर केन का जूस पीते रहो, धीरे धीरे बीमारी कम हो जाएगा और एक दिन वो शुगर केन का जूस मीठा लग जाएगा तो पता चल जाएगा कि बीमारी चला गया. So actually the treatment for the jaundice that is the to drink more and more this juice, sugar cane juice, because that is only the treatment for reducing this to vanish this jaundice disease. So that's why whether we like it or not, we are go on drinking. If we go on drinking the sugar cane juice, then one day we feel it's not bitter, it's sweet. So that day we feel okay, this sugar cane juice sweet. That means our jaundice is gone. अभी कोविड में भी कुछ पेशेंट का ऐसा अनुभव रहा है कि वो कुछ खा रहे हैं लेकिन उनको स्वाद नहीं आ रहा है. गुलाब जामुन खा रहे हैं लेकिन मीठा नहीं लग रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि गुलाब जामुन मीठा नहीं है, इसका मतलब वो बीमार है. That's why even disease who are the patient of COVID patient, you see, who is having disease of this COVID, so when they eat even gulab jamun, who is very sweet and nectarian, but they tell, oh, we are not getting any taste, it's not sweet actually. But the fact is that the gulab jamun is always sweet, but they are not getting taste because of this disease. उसी तरह हमें अविद्या की बीमारी है, इसलिए हमें मीठा होली नेम अभी कड़वा लगता है और उसका प्रभाव प्राप्त नहीं होता है जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त हुआ. That's why we have also the disease of avidya, ajnana, mode of ignorance. So because this avidya disease, we also don't feel the nectar, we don't realize the nectar of the holy name, the taste of holy name. So when we do offenses while chanting the holy name, the response is very different than when we chant pure holy name. जब हम अपराध के साथ जप करते हैं और जब हम शुद्ध नाम जप करते हैं तो फर्क होता है. शुद्ध नाम में चैतन्य महाप्रभु को प्रेम के भाव आ जाते थे. अपराध के होली नेम में, अपराध के नाम में हम करोड़ों साल तक जप करेंगे तो भी नहीं आएगा. That's why that when we chant like Chaitanya Mahaprabhu, because he was chanting purely without any offenseless chanting, he's chanting offenseless, that's why he was feeling ecstasy. But because we are doing the chanting with offenses, that's why even so many millions of birth, even if we chant with offenses chanting, offensive chanting, then we will not get any results. इसलिए हमें रोज 10 अपराध पढ़ना चाहिए ताकि हम समझें और उनको अवॉइड करना चाहिए और जय श्री कृष्ण चैतन्य पंचतत्व महामंत्र बोलना चाहिए ताकि उनकी कृपा से हम शुद्ध नाम जप कर सकें और निरंतर जप करते रहना चाहिए. तो चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से, गुरु परंपरा के आशीर्वाद से एक दिन हम शुद्ध नाम जप करेंगे और हमें भी वैसा भाव प्राप्त होगा. That's why we should always chant very attentively. We should take the mercy from this Panchatattva. Panchatattva mantra is very important. We should chant. And then when we chant by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, one day will come, then our chanting will be offenseless. And without any offense, we'll be chanting. And then we realize that the Krishna, we feel the ecstasy then.
तो हमें जब करते रहना चाहिए दीपक जी, और एक दिन हमें कृष्णा की कृपा से वो शुद्ध नाम प्राप्त होगा. That's why we should always constantly we should go on chanting, and one day by the mercy of the Lord, then we will feel the ecstasy also. ठीक है. हरि बोल, हरि कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू सो मच, हरे बहुत बहुत धन्यवाद आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन. गोविंदा प्रभु जी, प्लीज गो अहेड. गोविंद जी, I can't see you. Hare Krishna. Hare Krishna. Pranam. Dandavat Pranam. How are you? By your blessings, I'm still remembering all your instructions right in my heart. Hare Thank Krishna. you very much. Hare Krishna. I'm meditating and doing my sadhana. So here, my question is that there is a contrasting two elements. One, we are saying that you cannot see Krishna with a direct perception. It is not possible. On the other side, you concluded the lecture saying that you can see Krishna eye to eye, or we can see Krishna with the, like how I see you now with the webcam. So how is it going to, how are you going to relate these two contrasting situations? तो यहाँ पे जो दो प्रतिरोधात्मक जो चीजें हैं, जो विरोधाभास है दो चीजों में, तो पहले तो प्रभु ने बोला कि हम कृष्णा को नहीं देख सकते हैं, हमारे ये जो हमारे जो आंखें जो हमें है, जो इंद्रिय भौतिक जो आंखें हैं उनके द्वारा. फिर आपने फिर थोड़ी देर के बाद बोला नहीं, हमने कृष्ण को हम आमने सामने देख सकते हैं. तो ये जो है जो स्थिति है, ये विरोधाभास की स्थिति है, इसको हम कैसे समझें? कृपया करके इसको समझाइए हमें. हरे कृष्णा. Yes, so the conditional soul thinks that I am this body, and for him we have to explain that this material body and material senses cannot perceive Krishna. तो हम जो है ना बद्ध जी, हम सोचते हैं कि जो हम ये शरीर है, और ये शरीर क्योंकि वो सोचता है अपने आप को, इसके लिए जो है ना वो कृष्णा को है ना अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि अपने आप को भौतिक जो शरीर समझता है. At the same time, among all the bodies, the human body has a special chance that one can practice devotional service and give up the body, get a spiritual form, and in that spiritual form he can see Krishna face to face. इसलिए ये जो मनुष्य जो जन्म मिला है, जो मनुष्य का जो शरीर मिला है, ये एक ऐसा शरीर है जिसमें आप है ना भक्ति कर सकते हैं, और भक्ति के द्वारा फिर अपने जो भौतिक जो आपका जो शरीर है उसको आध्यात्मिक शरीर में आप बदल सकते हैं. और जब आप ये भौतिक शरीर आपका छूट जाएगा और पूरा आपका आध्यात्मिक शरीर हो जाता है, आप आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर लेते हैं, तो उस केस में हमें ना आमने सामने कृष्ण को देख सकते हैं. Yeah, so by practicing devotional service, we purify our life, our senses, get liberated, and in spiritual body we see Krishna. तो इसलिए हम लोग है ना, जब हम अपना जो जितने भी जो हमारे जो इंद्रिय हैं उनको हम जब शुद्ध कर लेते धीरे, अभी हम बद्ध अवस्था में धीरे करके जब हम शुद्ध करते जाएंगे जपा के द्वारा, तो फिर एक दिन हमें कृष्णा को हम देख सकते हैं जब शुद्ध अवस्था में पहुंच जाएंगे तो. Okay, Govind ji. So the same material body will transform as spiritual body. No, the same. We'll give up the material body. Okay, we give up means we have to leave this body and then only it happens. Yes. Or Yes. तो इसलिए जब तक हम ये जो भौतिक शरीर को जब तक हम त्यागते नहीं है, तब तक हम नहीं देख सकते हम कृष्ण को. There are episodes where okay, you can mute yourself, Govind ji. There are episodes where sadhakas have matured enough to see Krishna as a glimpse, like Dhruva Maharaj saw Vishnu, Narad Muni saw Vishnu in his heart. So Krishna gives that trailer, but finally one has to give up the material body to associate with Krishna. कुछ ऐसे कुछ घटना हुई है जिसमें जो जैसे ध्रुव महाराज थे, तो उन्होंने उसी थोड़ा सा देर के लिए कृष्ण को देखा,
लेकिन जो अंततः तो उनको है ना पूरा जो भौतिक शरीर त्यागने के बाद ही फिर उनको पूर्ण रूप से कृष्ण का दर्शन हुआ, कृष्ण से जाके मिले, वो कृष्ण को हमने सामने देखा भौतिक शरीर त्यागने के बाद ही। लेकिन ये थोड़े से देर के लिए उनको कृष्ण दिखते हैं कुछ लोगों को, जब उनका वो अवस्था पे लोग पहुंच जाते हैं तो। And there's a special rare situation called Jivana Mukta, wherein a person is liberated within the material body. तो इसलिए बहुत ही बहुत दुर्लभ अवस्था एक होती है जिसमें जो जीवन मुक्त अवस्था होती है, जिसमें कि हम इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी हम मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। यह बहुत ही दुर्लभ लेकिन अवस्था होती है, उसको प्राप्त करना बहुत कठिन होता है वो। But general process is one practices nice sadhana and by causeless mercy of Krishna gives up the material body and in spiritual body sees and associates with Krishna. इसलिए जो एक्चुअली देखा जाए तो अभ्यास तो यही है कि हमें इसको अभ्यास करते करते हम है ना अपना बहुत भक्ति करते करते कृष्ण की कृपा से फिर हम जब ये शुद्ध हो जाए और अपना सब शरीर हम त्याग करके भौतिक फिर हम आध्यात्म से प्राप्त करें तो जाके हम कृष्ण का संग कर सकते हैं, कृष्ण को जाके बात कर सकते हैं, उनसे जाके आमने सामने देख सकते हैं फिर हम। And believe me when I say this, Govindji, the day you see Krishna, you will stop using the word beautiful for anywhere else. तो आप अगर आप विश्वास करेंगे गोविंद जी, जिस दिन भी आप ये है ना कृष्ण को आप महसूस का अनुभव कर लेंगे, उनका दर्शन कर लेंगे, तो आप ब्यूटीफुल जो ऐसा जो शब्द आपके मुंह से निकलेंगे, मतलब संसार कोई चीज आपको खूबसूरत नहीं दिखेगी फिर। In fact, Rupa Goswami says, don't go to Keshi Ghat. If you go to Keshi Ghat, don't see that Govind under the Vamshivat playing flute. If you see him, then your material life is finished. जैसे रूप गोस्वामी बोलते हैं कि आप केशी घाट पे मत जाइए, वहां पे अगर आप सुंदर इसका रूप देख लेंगे, अगर आपने एक बार देख लिया तो आपका भौतिक जीवन पूरा समाप्त हो जाए। वंशीवट पे जहाँ खड़े रहते बांसुरी लेके कृष्णा, उनका अगर सतरूप देख लिया किसी ने, उसका भौतिक जीवन खत्म हो जाएगा। So he's indirectly saying Krishna is so attractive and beautiful. इसका मतलब ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कहा गया है कि कृष्णा इतना ज्यादा आकर्षित है, इतना ज्यादा खूबसूरत है कृष्ण। Okay. Bless that we all get to that stage quickly. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. All the तो मैं उम्मीद करता हूँ हम एक दिन ये अवस्था में सब लोग पहुंच जाए, जितना जल्द हो सके। Next question. Yeah, there's another question. Why did Mahaprabhu take sannyas from the parampara of Mayavadis when he had already taken the Harinam from Ishwarpuri, who was in the Bhakti Marg? तो ये जो एक प्रश्न ऐसा है कि भाई जो चैतन्य महाप्रभु ने जो संन्यास लिया था वो मायावादियों के संप्रदाय से लिया था, और लेकिन जो उन्होंने जो दीक्षा ली थी वो तो जो ईश्वर प्रिय जो कि भक्ति संप्रदाय में थे उस टाइम में, उससे ली थी। तो ऐसा क्यों किया उन्होंने? So after taking Harinam initiation, when Chaitanya Mahaprabhu came back to his village, he was a teacher, and while teaching, he would chant the holy name of Krishna, and the students will think that what is happening? This is not part of the syllabus. इसलिए जब चैतन्य महाप्रभु ने जब हरिनाम दीक्षा लिया अपने गुरु से, उसके बाद जब वो वापस अपने आए गांव में आए उधर, तो उन्होंने जब वो जो क्योंकि स्कूल के अध्यापक थे, शिक्षक थे स्कूल में, तो जब वो पढ़ाने लगते तो उनको अचानक ही जो भगवान का नाम लेना आरंभ कर देते थे, तो इसके जो विद्यार्थी सब अचंभित हो जाते थे, अरे ये तो हमारे पाठ्यक्रम में तो है ही नहीं, ये क्यों ये बता रहे हैं इसके बारे में, जपा मंत्र जपा क्यों बोल रहे, मंत्र जपा क्यों कर रहे हैं? So the other students, teachers and brahmanas who were not devotees, they started criticizing Chaitanya Mahaprabhu. तो इसमें जो कुछ जो विद्यार्थी थे और कुछ लोग थे वहाँ पे जो कि भक्ति में उनका कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को बहुत ही ज्यादा आलोचना करने लगे उनका। So Chaitanya Mahaprabhu thought that I have incarnated to deliver people, but these people, they are not respecting me and criticizing me, so they will go to hell. तो चैतन्य महाप्रभु ने ये अनुभव किया कि अरे मेरा जो यहाँ पे जो हुआ है, यहाँ पे आविर्भाव जो मेरा हुआ है, यहाँ पे आने का जो उद्देश्य है कि सबको हमें मोक्ष देना है, सबको उनको उनका गति जो है
उत्तम गति को प्राप्त कराना है हमको सबको। लेकिन मेरा तो उद्देश्य लक्ष्य को कुछ प्राप्त हो नहीं रहा है। ये लोग तो उल्टा मेरे को, जो लोग अगर ऐसे अगर आलोचना करेंगे तो उनका तो उद्धार हो ही नहीं पाएगा। So the only way they can be liberated is they stop criticizing me and respect me. तो उसका सिर्फ अभी एक ही रास्ता है, अगर वो इसको जो उत्तम गति प्राप्त करने का जो है, जो मोक्ष प्राप्त करने का उनका एक ही रास्ता है कि वो मुझे ये जो मेरी आलोचना करना, मेरा जो निंदा करना बंद कर दें वो। And people generally respect sannyasis, so Chaitanya Mahaprabhu decided to take sannyas. और क्योंकि अभी उनको लगा कि सिर्फ जो ज्यादातर लोग तो सन्यासी का तो सभी लोग है ना सम्मान करते हैं, तो मेरा भी अगर ये सम्मान करेंगे तो इनको मोक्ष मिलेगा, तो इसलिए मुझे भी सन्यास लूंगा मैं। तो But now at that time, Vaishnavas generally would not take sannyas; they would become Babaji. लेकिन उस समय ऐसा हुआ था कि जितने भी जो वैष्णव थे वो सब बाबा जी बन जाते थे, कोई सन्यास नहीं लेता था। And the popular sannyasis were only from Mayavadi Sampradaya. और उस टाइम में जो जितने भी जो प्रसिद्ध जो सन्यासी होते थे वो सब मायावादी संप्रदाय से थे। So Chaitanya Mahaprabhu took sannyas from Mayavadi Sampradaya so that people accept him as a sannyasi. इसलिए उनको है ना मायावादी संप्रदाय से सन्यास लेना पड़ा, ताकि उसको है ना सन्यासी के रूप में लोग स्वीकार करें। And that also helped in the preaching, because then other Mayavadi sannyasis would be ready to associate with him and he would preach to them. और दूसरा इसका ये भी एक लाभ हुआ कि उसमें है ना जो मायावादियों के साथ हुआ उसके लिए आसान हो गया, मायावादी सन्यासी के साथ उठना बैठना, उसके साथ संग करना, तो मायावादी सन्यासियों का उससे भी उद्धार हुआ। Okay? Yeah. Hare Krishna. Next. Raghuranjan, Prabhu, go ahead. Unmute yourself. Prabhuji, Dhanavad Pranam. Dhanavad Pranam, Hare Krishna. Just I have a small doubt, Prabhuji. He said that that transcendental means the person will be free from all the three modes. Okay, so I understand that the transcendentalist, there are three types of transcendentalist. The one who is in transcendentalist, the impersonal transcendentalist, and also Jnani, that was Bhagavan transcendentalist. So that means all three transcendentalist is free from the three most Prabhuji, or how you can understand? Can you please let me तो यहाँ पे प्रभु पूछ रहे हैं कि आपने बताया जैसे कि जो दिव्य अवस्था को जब कोई प्राप्त हो जाता है और तीनों जो प्रकृति के तीन गुण से ऊपर उठ जाता है, तो इसमें जैसे तीन टाइप के जो दिव्य अवस्था प्राप्त करते हैं, तीन टाइप के लोग हैं जो दिव्य अवस्था को प्राप्त होते हैं। एक तो जो ये जो मायावादी जो सन्यासी है वो भी ट्रांसेंडेंटल अवस्था में आ जाते हैं, और दूसरा जो ज्ञानी है वो ज्ञानी भी उसमें दिव्य अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, और तीसरा फिर जो भगवान का जो साक्षात्कार करते हैं वो भी दिव्य अवस्था को प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब क्या तीनों ही ये भौतिक प्रकृति के गुणों से ऊपर है क्या? Yeah, so when Prabhupada uses the word transcendentalist, it's not just like Krishna is transcendental. Prabhupada is using one who is on the path to achieve transcendental is also called transcendentalist. तो इसलिए जो प्रभुपाद ने जैसे बताया है कि जो आदमी जब दिव्यता को प्राप्त होता है तो वो भी जो है ना दिव्य आदमी हो जाता है, वो भी दिव्य व्यक्ति हो जाता है। तो ये प्रभुपाद ने स्पष्ट रूप से समझाया कि जो भी दिव्य अवस्था को प्राप्त होना होगा तो उसको दिव्यता प्राप्त हुआ पुरुष माना जाता है, व्यक्ति माना जाता है उसको। Just like I take admission in engineering college, so after 2-3 semesters or 5 semesters, I am not an engineer. I am on the path to become engineer. जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में अगर मैंने दाखिला लिया है मैंने, तो उसमें दाखिला लेने के बाद मैं 4 या 5 महीने सेमेस्टर किए सिर्फ, और इसका मतलब ये नहीं कि अभी मैं इंजीनियर बन गया, नहीं, लेकिन मैं इंजीनियर बनने के रास्ते पे हूँ। अभी मैं उस मार्ग पे चल पड़ा हूँ कि एक दिन मैं इंजीनियर बन जाऊंगा मैं। So transcendental means one who is on the path of becoming transcendental. तो इसलिए जो जितने भी जो दिव्यता को जो प्राप्त हुए हैं, मतलब वो अभी
उस मार्ग पे चल रहे हैं, दिव्य अवस्था को प्राप्त करने के मार्ग पे चल रहे हैं, इसका मतलब। So when impersonalists practice their process to become transcendental, even if they reach there, they eventually fall down. तो इसलिए जो जितने भी जो मायावादी लोग हैं, जो निराकारवादी हैं, वो लोग है ना, वो पहुंच भी जाए अगर उस अवस्था में तो, लेकिन फिर भी वो बाद में उनका पतन हो जाता है, नीचे गिर जाते हैं वो। But because they are on the path, they are called transcendentalists. क्योंकि लेकिन वो उस रास्ते पे चलने के लिए ऑलरेडी दिव्यता को प्राप्त करने के लिए, इसलिए उनको दिव्य पुरुष कहा जाता है उनको। But real transcendental person is only Krishna and his pure devotees. लेकिन जो सचमुच के जो दिव्य पुरुष वो है कृष्ण है, यानी तो उनके जो शुद्ध भक्त है, वही जो सचमुच में देखा जाए तो असलियत में वही लोग दिव्यता को प्राप्त हुए। Okay, Prabhu? Thank you very much. Thank you so much. I think I don't see any more questions from the devotees. Guruji Prabhuji, thank you very, very much for joining us in your busy schedule. So keep showering your mercy. We'll again trouble you sometime later, and look forward for more nectar from your side. My pranams to all the devotees under you there, and also to Bajari Prabhuji and team. So big Hare Krishna mantra from all of us. Thank you, Radha Bhagavad Prabhu. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Thank you, Radha Bhagavad Prabhu, for inviting me. And thank you, Hemang Chaitanya Prabhu, for translating. And going through, I was very happy to see you. Thank you very much, all the devotees. धन्यवाद, आपने हमको अवसर दिया आपका सेवा का। हरे कृष्ण प्रभु। Hare Krishna. Hare Krishna.